स्वामी मेरे राम, कोट अपराध परे ही तेरे चेरे राम। कोट अपराध हमारे खंडो कनक विधि समझाओ। हमें अज्ञान अल्प मत थोड़ी, तुम्हें अपना बिरद रखा। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो रखन हार दयाला, नानक कर के बोले। राखो रखन हार दयाला, नानक कर के बोले। सन्मान सत्कारियों, गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत। वडभागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाले हो, जो आप बड़े प्यार सहित साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठ के सूझवान सियाने प्रबंधकों के उलीके हुए ये विशेष समागम जो धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह महाराज जी के पवित्र पावन 400 साला प्रकाश गुरपुरब शताब्दी को समर्पित हैं। मेरे तो पहला गुरु के बहुत सत्कारयोग कीर्तनीय गुरु सवारियों पासों बड़े प्यार विच और बड़े सुंदर अंदाज विच गुरबाणी के कीर्तन का आप जी आनंद मान रहे थे। विचार आरंभता तो पहला गुरु बख्शिश की गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जिन्हां का मुबारक नाम गुरमत सिद्धांत विच इन्ना अदब, इन्ना सत्कार और इन्ना भरोसे के नाल लिया जाता है कि कलगियां वाले पातशाह महाराज जी ने भी ये वचन कहे, तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निध आवे ताए। जिथे ये बख्शिशां प्राप्त होंदियां ने उत्थे सिख के जीवन विच अपने गुरु के प्रति ये भरोसा भी है, दृढ़ निश्चय ते विश्वास भी है। सतगुरु पातशाह महाराज जी को याद कीते दुनियावी सुख ही घर विच दौड़ के नहीं आते। किते विपता पैण ते सिख जदों गुरु नूं याद करता है, मेरे सतगुरु का ये सुभाव है, बिरद है, सब थाई हुए सहाय, सब थाई। और तुसी इन्नी पंक्ति ते जे भरोसा रख के और इनू विचार के गुरमत के रस्ते पे तुर पो। और मैं यकीन नाल आखदा कि तुहाडी जिंदगी विच कोई भी वो कर्म नहीं होएगा जिहड़ा मेरे गुरु नूं भाउंदा चंगा ना लगदा।
ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ, ਓਲੇ ਹੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਭਗਤੀ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਦੋ ਕਾਲਮ ਪਰਣਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਮੇਂ, ਦੋ ਕਾਲਮ, ਕਾਲਮ ਮਾਨੇ ਸਮਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ? ਜਨਮ ਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਕਾਲਮ ਪਰਣਾਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਆਲਮ ਸਰੂਪੇ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਦਿਆਲੂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਆਲੂ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਲਈ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਲਈ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਆਲਤਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਦਿਆਲੂ। ਦਿਆਲਮ ਸਰੂਪੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦਇਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ। ਅੰਗ ਸੰਗੇ, ਬਰੀਕੀ ਸਮਝਣਾ। ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪੈਰ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅੰਗ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅੰਗ ਸੰਗੇ, ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਹੱਥ ਨਾ ਪਕੜਾਂਗਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੱਥ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨੌਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਚਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਰੀਕੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੱਖੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਹਿੰਦੀ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਨਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਸੁਖੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸੁਖੈਨ ਸੌਖੀ ਸੌਖੀ।
पर एक गल धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की पावन बाणी की ये विलखण है कि धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की पावन बाणी ने जिन्ना निज पे अपने आप वाल मोड़ के सानू आपा विखाया, इन्ने शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी च होर गुरु साहिबान की रसना तो उचारण हुई, भट्टां की भगतां की सिखां की रसना तो उचारण हुई बाणी चो सानू नहीं। शब्दावली सौखी है, अखर सौखे ने, शब्द सौखे ने, शब्द की बनतर सौखी, उदाहरण सौखी, पर सब तो औखा काम यह है जिहड़ा सतगुरु जी ने वो इधर को मोड़ दिता अपने पर। किवें साहब जी ने मोड़िया तो किहड़े गुण दसे। एक गुण गुरु पातशाह महाराज जी ने बेअंत गुण जो सानू दिते, उन्हां चों एक गुण की साझ तुहाडे नाल पावांगे। इस तो पहला असीस झोली पाओ गुरु बख्शिश कीती, गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जे तुसीं नौवें महले के श्लोक पढ़ोगे तो आप जिन्होंने भोग के श्लोक भी कहते हैं, 57 श्लोक ने सतगुरु पातशाह जी के, तो तुसीं उन्हां श्लोकां नूं गुणां दे रूप में ले लो कि ये सतगुरु ने गुण दसे, गुण दसे। उन्हां गुणां च एक गुण दसिया भय काबू को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुंदरे मना ज्ञानी ताही बखान। ਇਹਦੇ आधार पर मैं आप जी के चरण बरसांगा तो इतों ਤੁਹਾਨੂੰ शुरू करके लेके आवांगा बोले महले तक। सतगुरु पातशाह महाराज जी कहते हैं दुनिया में सियाणा सुलझिया दानिशमंद ते ज्ञानवान मनुख कौन है। असी वख-वख तरीके नाल सियाणे दी, दाने दी, ज्ञानी दी असी अपने अपने तरीके नाल दी परिभाषा बनाउने ते उहदी व्याख्या करदे हो। पिंडां थावां दे विच मैं देखिया बहुता कोई नीला ही परना बन्नण लग जाए तो उहनूं ज्ञानी आखण लग जांदे ने, ज्ञानी ना ही पै जांदा ज्ञानी, आली पै जांदी ज्ञानी। जब असीं गुरुद्वारा साहिब सेवा करन वालिआं लई भी ये शब्द वरतदे हां, ज्ञानी है जी, भाई जी ज्ञानी, असीं ये शब्द वरतदे हां, पर यह शब्द पार्टिकुलर किसी एक लई नहीं, ये तुहाडे सारिआं लई है, कुल दुनिया के लोकां लई। कोई कला नीली पग बन के ज्ञानी नहीं बन सकता, ना हो सकता है, ना होना चाहिए ही है। मरने क्या गुण है, जेड़ा कोई मर्जी ले ले आ गुण है, और ये बहुत बड़ा गुण है। भय काहू को देत नहीं, ना किसी को डराउना, न भय मानत आन, ते ना किसी को डरना। ये जबानी कलामी शब्द आप सारे वरतते हैं, पर यह हकीकत नहीं होता। आप अक्सर कहते मैं किहड़ा किहे तो डरदा है, कोई गल होंदी ना मैं किहड़ा किहे तो डरदा, ये झूठ होंदा मेरा। डरदा क्यों नहीं डरदा? अपने सारिਆਂ ਦੇ जीवन में ये सच्चाई है, अपने तो जिहड़ा सिर ते बैठा कोई तकड़ा ਉਹਦੇ तो डरदे आ, जिहड़ा साडे तो माड़ा हुंदा ਉਹਨੂੰ डराउने आ। तगड़ा दिखे तो उन्होंने सलामा करते हैं, भावें जवाब ना भी दे, तो जे माड़ा सानू फतेह बुलावे तो आप उसकी फतेह का जवाब नहीं देते। साडा यह स्वभाव है। आप शब्द की वरतते हैं, ये कोई फर्क नहीं पैदा, रत्ती पर फर्क नहीं। मैं किसी तो नहीं डरता जी, ये कहना कुछ नहीं होगा, ये झूठ है। सच ये है मैं किसी तो डरता नहीं हाँ, इनू डराउंदा नहीं है। डरदा किहदे तो, डराउना किहदे तो अपनी सारियां दी आदत है। क्योंकि जदों तक मैं तुहानूं आखी जावां, तुसीं मैनूं आखी जाओ, मैं ये आखां कि सतगुरु की बाणी जिहड़ी है ये तो सानूं तुसीं तां बुलाउंदे हो, सादे हो, पैसे दिंदे हो, ना प्रबंध करदे हो कि तुहानूं इन्नी कथा आउंदी नहीं, तुसीं सानूं बुलाउंदे हो ते असीं तुहानूं कथा सुणाउणी है। मैं तुहानूं गुरु दा ज्ञान सुणाउणा चले जाना, तुसीं सुण लिया, तुसीं आपे करो ना करो, मैं मन्ने। हुण तुसीं कहता भी असीं भाई नूं पैसे दे दित्ते ते असीं बन्ने, करना ना करना ते इन्हां दा काम है। तो ईमानदारी के नाल बेनती करा, मैं भी खाली रहांगा तो पल्ले तुहाडे भी कख नहीं पैना जे आपां ये सोच लेके चलांगे। मैं आखां तुहाडे लिए है, तुसीं आखो मेरे लिए।
क्लास के टीचर पढ़ाता है, 30-40 बच्चे बैठे ने, कोई अगे बैठा कोई पिछे बैठा, कोई बड़े ध्यान नाल सुन रहा, कोई बेध्यान है, कोई थोड़ा बहुत ध्यान रख रहा, कोई बिल्कुल ही ध्यान नहीं रख रहा। तो जो कोई बहुता ध्यान ना पढ़ता हो तो दूसरे अपने ये लिए है, मतलब नहीं, वो सारे लिए है। गुरु का वचन ये गुण है, ये मेरे लिए भी है, तुहाडे लिए भी है। हुण इत्थे आपां खाली चले जाते, मैं ना भी तू ही करो, तू ही आने मैं करा, तो कीता दोवां नहीं कुछ ना सुन सुनाउण तक गल रहेगी। मैं पैसे लैके चला गया, तो पैसे दे के गल मुका ली। फिर आप सारे समागमां का जो निचोड़ कटते हैं, वो जाके फिर निचोड़ ये निकलता भी लंगर च की बनिया सी। लंगर शब्द आते हैं, साड़ी सुरत पहुँच जाती है भगतां च, बाल्टियां च। जे उत्ते ढक्कन है तो उहदे की होएगा, सी अंदाजा लगाइए लंगर। मैं किसी को आखा, कोई मैनू आके वीर जी लंगर छक के जाए, तो मतलब की कटांगे? इसका मतलब यही है कि जो कोई भुखा है प्रसादा छक के जाते, क्योंकि असी इको ही लंगर मनिया, इको ही लंगर प्रचारिया, इको ही लंगर मशहूर किया। वो लंगर ये असी गुरु के लंगर चो बाहर कढ़ के सड़कों तक लै गए, दूर दूर तक लै गए। आओ जी लंगर छको जी। जिहड़े लंगर असी दुनिया में मशहूर किया, गुरु नानक पातशाह जी ने अपनी जिंदगी एक बारी लाया, सिर्फ एक बारी। मैं 3-4 बारी वो चूड़ के आना मंडी, वो गुरुद्वारा सच्चा सौदा साहब उत्ते दर्शन करके आया पाकिस्तान। एक बारी लाया ना 20 रुपये का। जब उन्होंने जीवन च 2-3 बारी होर लंगर का जिक्र आता, कुरुक्षेत्र एक बारी जिक्र आता है, महाराज जो सिंगला दीप गए उदों का जिक्र आता है, जब पातशाह जो सिद्धा पुल गए उत्थे का जिक्र आता है। उन्होंने कहा कि तुसीं आते हो वंड के खाना, आ एक तिल वंड के किवें खाता जाएगा? एक निक्का जिहा तिल मैं अपने भी मूँह च पावां तो मैनूं भी पता नहीं लगेगा कि मूँह च है कि नहीं है। वंड के खाण की गल तिल तो दसो। वो भी लंगर सी। पातशाह महाराज जी ने उन्हों की भंग घोटण वाला वो घोटड़ा लिया, उन्होंने धो के साफ कर, वो तिल रखिया, थोड़ा जल पाया, उन्होंने रगड़ता, वो जल का रूप हो गया। पर ने होर जल पाया, कि नहीं हो गया। पर कहते भावें ये 1000 बंदियां छका दो, लख बंदियां छका दो, एक तिल भी वंड के छकिया जा सकता जे नहीं। किन्नी क बारी जिक्र है? 2 बारी 4 बारी, सिर्फ 2-4 बारी जिक्र आया। मूल रूप में एक बारी जोड़ा 20 रुपये का लाया, वो असी कुल दुनिया के मशहूर कर दिता, तो दूसरे लंगर को आप भूली गए। अपने को आखा तो गुनाह होएगा। गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी पढ़ियो, धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज जी की पावन बाणी राग रामकली राग दियाँ 3 वारां ने, जिहदे एक वार बाबा सत्ता ते बलवंड जी की। ਉਹਦੇ ਚ पढ़ियो तुसीं भी लंगर किन्ने तरह का? एक तरह का ही है, बना लो, पका लो, खा लो, धक्के ना खवा लो, होर वध गया पैक कर लो, घर में ले जाओ। जिहड़ा घरों नहीं आ सकता, इन्हें गुरुद्वारे चले है तो अज खीर बननी मेरे लिए भी लैनी, यही लंगर है कि ਜਾਂ कुछ होर भी है? इस तो बिना यही है कि ਜਾਂ इस तो बिना कुछ होर है? बाणी चो पढ़ियो तो तुहानूं 2 तरह का लंगर मिलेगा गुरु ग्रंथ साहब जो 2 तरह का। आ जो तुसी बैठे हो ना, ये तुसी लंगर छक रहे हो, ये भी लंगर है। तुसी इन्हूं ये शब्द ना भी वरतो कि कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, बाणी पढ़ी, ना भी वरतो। तुसी बेनती करो जी गुरमत समागम हो रहा, सारी संगत नूं बेनती है, सारे होम होमा के आओ तो रज रज लंगर छको, हथ कतनी नहीं होएगा। 2 तरह का लंगर, एक संगत का, एक पंगत का। हुण संगत का लंगर किहड़ा है? संगत का लंगर बाणी च बचन पढ़ो, लंगर चलै गुर शब्द हर, टोट ना आवी खटी। गुरु के शब्द का लंगर जिहड़ा असीं संगत में बैठ के छकना, पर यह वो लंगर है जिन्हें साडी पेट की भुख नहीं मिटाउणी, जिन्हें मन की भुख मिटाउणी। पंक्तियां पढ़ो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब दवाइयां। भुख का संबंध है साच नाम ते भुख। हुण भुख नूं दूर कौन करता? भुख नूं दूर करता लंगर। और किहड़ा लंगर? गुरु के शब्द का लंगर। दूसरे लंगर का भी जिक्र है जिहड़ा पंगत में बैठ के छकना है। लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर क्या। हुण असीं की कीता? वो लंगर जिहड़ा उस लंगर नूं ते असीं बस खुल्लण दी देर, और सारी जगह चमत्कार होंदा।
बाबे नानक की कला वरतदी ऐसा चमत्कार मेरा घट्टो घट्ट 30 सालों का अपना तजर्बा है। 30 सालों का जो तो इस खेतर में आया दीवान सजिया, दीवान के 40 लंगर खुलिया तो एक जीरो लगी, 40 के 400 कदों जाते पता ही लगता। हर एक जगह इस तरह दीवान में 40 लंगर च 400, दीवान में तू खा तू खा तू खा, लंगर में मेरे वाल आउंदी मेरे वाल आउंदी, इस तरह करता। कभी लंगर च किसी को कहना पैंदा भी जेड़ी संगत तुसीं बाहर बैठे हो गल्लां ना करो, लंगर खुला आके छको, कहना पैंदा कभी अज तक सुनी जे अनाउंसमेंट संगत च कहना पैंदा भी जेड़े तुसीं बाहर बैठे हो घरों भी आए हो आसे पासे गल्लां मार के की करोगे, आ जाओ दरबार में बैठो, कहना पैंदा ना। ਉਹਦਾ मतलब ही ये निकलता है वो नगर के आप सेवादार में जाना अवीर फकीर एक होर पा जाए कड़छी, एक कड़छी होर पा जा उन्होंने आवाजा मार मार रहे तो इतने की वरत गया किन्ने खाधा किन्ने नहीं पता, इधर वेसले वेसले क्यों आ मैं न तु ही छको तु ही आने मैं छको, हूँ कही जाओ तो ना तु ही रचे तो ना मैं रचा, करी जाओ नगर की कर भाई गुरदास सर खांड खांड कहे जेबा ना स्वाद मीठो आवे। आज शताब्दी साढ़े लिए एक चैलेंज लेके आई है क्योंकि आप अपने आप नाल धोखा कर चुके हैं। मैं अपनी उम्र के हिसाब नाल गल करा तो आप पिछले 20 सालों के 20 के नेड़े तकरीबन शताब्दियां मना लिया, 20 के नेड़े वादी होंगी घट नहीं, 99 तो आप शुरू की और एक संकल्प लेके चले सी सारे सियाणे। 1999 की विसाखी तो पहला 300 साल खालसे के साजणे दिवस तो पहला ये प्रण लैके चले सा कि ये 300 साले ते पूरी सिख कौम अमृतधारी हो जाएगी। लेकिन चले सी कि नहीं, जो बुजुर्ग बैठे हो सारे तो नहीं पता होगा, आप संकल्प लेके चले कि आप कर लिया कुछ भी ना किया। उस तो बाद 2004 के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्णता का जो बादशाह महाराज धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कृपा की थी 1604 उधर 400 साल मनाया। वह मतलब की सी उदों एक संकल्प लैके चले भी गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना आसे पासे नहीं जावांगे कि आप पूरी उतरे नहीं उतरे, फिर वही गुजरिया। 2008 के आप एक शताब्दी बनाई धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को गुरता गति देने की हजूर साहब, और जिहदे तो आप मैं खुद उत्ते गया जिहदे तो आप उस शताब्दी दी जिहड़ियां यादां लैके आए हैं वो यादां बड़ियां कमाल दियां, वो यादां भी लंगर दियां लैके आए। वो लंगर दियां यादां फलानी महापुरखा ने लंगर लाया सी, इन्ने तरह का लंगर सी, उत्ते पीजियां का लंगर सी, उत्ते पानी की थां ते कोल्ड ड्रिंक मिलती सी, दाल दे विच बदाम वेखे सी, बनाई गई शताब्दी। जदों कि उस शताब्दी का संबंध सिर्फ 2 पंक्तियां नाल है, वो 2 पंक्तियां ही साडी शताब्दी सी कि आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो करना। दोवां चों जे तुसीं एक छड्ड दिओ एक भी लै लो ना, वो इको पंक्ति शताब्दी सी साडी, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ बस, पर फिर भी उहदे च कामयाब ना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी सारियां शताब्दियां मना लिया, अनंदपुर साहिब का किला छड्डना, सरसा का कंडा, साहिबजादियां की मरम पट्टी तक दी सारी, पर बहुता कुछ सानू फायदा होया नहीं। ते की आप ये शताब्दी भी उदों ही मनावांगे, ये साडे लिए विचारन का विषय। जदों तक आप सारे जने ये आखांगे कि तू कर दूजा कि तू कर, किसी ने कुछ नहीं करना, मैं अपना करा तुसीं अपना करो, दोवें करिए कि दोवां दा भला। इसलिए ये बोले धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी साडे लिए पावन बाणी च वार वार मुश्किल पैदा करते हैं। जदों कह देंगे ने कहो नानक सुन रे मना, और ये पढ़न कहने कितना औखा, कहो नानक सुन रे मना, औखा लगा कुछ भी, पर जो बरीकी ना विचारो तो अंदर हिल जाता है। ये साढ़े सुभाव ही नहीं जो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कह रहे हैं, कहो नानक सुन रे मना, अपने आप नाल गल करनी, अपने आप को समझाना, निज की गल आप चीनना,
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੇਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਚੇਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕੋਟੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਕਦੇ? ਇਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ। ਆਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਇਆ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਫਲਸਫਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਟਾਕਰਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ, ਉੱਥੇ ਟਾਕਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਆ ਫੌਜ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਬਣੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜ਼ਾਬਰ, ਉੱਥੇ ਟਾਕਰਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟਾਕਰਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਉਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਦੱਸ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਪਾਓਗੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾਨਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਪੁਰਸ਼ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਕ ਜੰਗ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ, ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮੇ ਅਸੀਂ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਆ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਉਣਾ ਪਏ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੱਲ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਕਿ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰ ਜਦ ਗੰਢੀ ਸਤਿਵਰ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੇ ਕਾ। ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੜਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਰੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੇਤਾਨਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਪਿੰਡ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਦ ਭਾਗੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਨੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆ ਸਿਉਕਿਆ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਗੁਣ ਲੱਭਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਲਲਾ ਬੇਗ ਵਰਗੇ, ਪੈਦੇ ਖਾਨ ਵਰਗੇ,
जिन्हां दे शरीर के दो दो टुकड़े कर देंगे सतयुग को वारिश। किसी की माँ का पुत मरिया, किसी की भैन का भरा मरिया, किसी पत्नी का सिर का सुहाग मरिया, किसी के घर का चिराग बुझ गया, मरिया भी गुरु के हथी। तो फिर किस तरह आखोगे भी सतगुरु निर्वैर है, हथ में किरपान है, लहू वग रहा है, लोगों को मारिया जा रहा है, लोग मर रहे हैं। इन्हों कुछ करदे हुए मेरा गुरु निर्वैर है। फिर निर्वैर किवें? वैर नहीं तो मारिया क्यों? कि वैर तो बिना भी कभी मारिया जाता। इतने तुम गुण देखो, मेरा गुरु आखदा भय काहू को देत नहीं। मेरा गुरु किसी को भय नहीं दिता। इसलिए सतगुरु जी चढ़ाई करके लाहौर नहीं गए, लाहौर तो फौज चढ़ के अमृतसर गए, सतगुरु नहीं गए। पहला गुण भय काहू को देत नहीं। 4 जंगा गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दी, 14 गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी, एक भी जंग ऐसी नहीं जिथे गुरु ने चढ़ाई की हो, एक भी नहीं। दुश्मन चढ़ के आए। मैं किसी से चढ़ाई करके नहीं जाना, क्योंकि साडा सिद्धांत है भय काहू को देत नहीं। किसी से चढ़ाई नहीं करनी, किसी को नहीं करनी। हम दुश्मन चढ़ के आ गया, फिर ये दूसरा गुण है मैं पैमानत आन। जे मैं किसी से चढ़ के किसी को डराउंदा नहीं, जे कोई चढ़ के आ जाए तो वो डरदा भी नहीं। जंग युद्ध करके भी मेरा गुरु निर्वैर है। मेरे गुरु का किसी नाल वैर नहीं, मेरे गुरु के सिद्धांत का किसी नाल वैर नहीं। श्री अकाल तख्त साहिब मेरे गुरु का सिद्धांत है। दुनिया के लोग अकाल तख्त नाल वैर करते आए ने, लख वारी करन। श्री अकाल तख्त साहिब का किसी नाल वैर नहीं, किसी नाल वैर नहीं। ना किसी धर्म ना, ना किसी मजहब ना, ना किसी जात पात ऊंच नीच ना। जेकर टाकरा वैर नहीं है, टाकरा है वो है बुराई का जुल्म का। वो कोई भी करेगा तो अकाल तख्त साहिब सामने आएगा। यदि रचना ही इसे लिए हुई गल नहीं रखी। इस अकाल तख्त के सिरजणहार श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के घर 1 अप्रैल 1621 सतगुरु जी के महल सत्कारयोग माता नानकी जी, 2 नानकियां ने। सिख इतिहास में साहिब गुरु नानक पातशाह जी के वड्डे भैन, जिन्हां दा लाहौर के नेड़े नगर है गिला करके। गुरु नानक पातशाह महाराज जी के नानके पिंड ने, उत्थे इन्हां दा जन्म होया, वो माता नानकी। दूसरे गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के महल माता नानकी। अमृत वेले का समा सी जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का अवतार होया। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दरबार साहिब के हरमंदर साहिब के अंदर संदासा की वार का कीर्तन हो गया। पता लगा, सेवादार ने आके दस्या पातशाह महाराज जी बधाइयाँ। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, दीवान की संपूर्णता हुई। सतगुरु अपने मेला में गए, अपने पुत्र को गोद में लिया, दर्शन किए। जिन्हों की शरीरक उम्र अजे कुछ घंटिया की है। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने बड़े प्रेम नाल दर्शन किए। दर्शन करके गुरु जी के महल माता नानकी जी को दे दिता। उन्होंने अपनी गोद में ले लिया। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने दोनों हाथ जोड़े कि शीश झुकाया। कोल खलोते ने बहादुर बाबा विधि चंद जी। सतगुरु इन्हों तो पहला थोड़े 4 सुपुत्र ने, बाबा गुरदिता जी, बाबा टल राय जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अणी राय जी, 4 पुत्र ने। उन्होंने तुसीं कदी शीश नहीं झुकाया। हुणे जन्मे ने आप जी के घर तो तुसीं हाथ जोड़ के शीश झुका रहे हो। हाथ भी जोड़े ने, शीश झुकाया, नमस्कार की। सतगुरु पातशाह महाराज जी कह लगे, भाई विधि चंद जी, नमस्कारां दा शीश झुकाउणा, हाथ जोड़ने ये दुनियावी रिश्ते करके नहीं होता। हाथ जोड़ते ने करनियां, शीश झुकदा करनी, नमस्कार होंदी करनी। ते नाल ही दूजा सवाल आ गया, इन्हां दा ते अवतार ही हुणे होया ते इहो जी किहड़ी करनी आप जी ने वेखी। पातशाह महाराज जी कह लगे, विधि चंद जी, इन्हां ने जो करनी करनी है ना, जो समा आना तेग बहादुर से किरिया करी ना किनू आन, वो करनी ना तुसी वेखनी है ना मैं वेखनी है। पर मैनू आज वो करनी दिखाई पै रही है, इस करके इन्हों की उस करनी नमस्कार की।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਤਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਰਫ, ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਆਲਮਗੀਰ ਇਹਦੇ ਤਖੱਲਸ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਨੇ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬੂ ਜ਼ਫਰ ਮੁਹੱਈਉਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ, ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਆਲਮਗੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਹੱਸੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦਾ, ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਤਰਸਾ ਤਰਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। 4 ਵਾਰੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਰਣ ਜੇਤੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, 1 2 ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲਕਬ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਣੀ। ਵੇਖ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਤੇਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਲੱਖਾਂ ਲੈ ਗਈ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਮੈਂ ਭੈ ਮਾਨਤ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਡਰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕੇ ਡਰਾਓ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਓ। ਡਰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਡਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮੁਕਰਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਡਰੇ। ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਬੱਚੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ। ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਆਵੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ।
बहादुर शरण कौर का इतिहास पढ़ो, जमरौद के किले वाली, तुहानूं पता लगेगा। पै काहू को देत न, धक्के दे नाल किसी की जमीन ते कब्जा कर लो, धक्के दे नाल किसी नूं दबा लो, गला माड़ा है तो दबा लो, नहीं, ये नहीं गल करते। हक पराया ना विकाओ ससूर उस गाए, गुर पीर हावा तां परेजा मुर्दार न खाए। जे कोई मेरे तो माड़ा है तो उन्होंने मेरे ते भरोसा होवे भी मैं उसकी मदद करांगा, मेरे प्रति उसके मन च डर ना होवे ये मैनूं खा जाएगा, इहो जिहा जीवन ना होवे सिख दा। पै काबू को देत ने ना किसी नूं डरावे, न पै मानक आन, ते समा पवे ते किसी तो डरे भी ना। दूजे का हक खोवे ना, अपने हक की राखी करने के समर्थ होवे। होली ते होला महला थोड़ा जिहा इस पासे, ये होला महला भी इस गल का प्रतीक है। कई बार ये सोच आती है, थोड़ा जिहा मैं बड़ा खुल के बड़ी जिम्मेदारी के नाल बेनती करा, जदों असीं पातशाह जी की पावन बाणी चों कुछ ऐसे शब्द वरतते हैं जिथे पत्थर की पूजा का खंडन होता है, जिथे विपर के कर्म कांडा का जिक्र होता है। कई हिंदू वीर ये सोचते हैं कि शायद गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च जां गुरु नानक के सिद्धांत में साडे धर्म के खिलाफ है। ऐसा क्यों है? उत्थे एक नुकता पकड़ी, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी च पत्थर की पूजा का, उन्होंने भोग लगाउणा, इशनान कराउणा, फुੱਲ चढ़ाने, उन्होंने कीरा त्याग लाउणियां जां उन्होंने मत्थे टेकने, ये बिल्कुल मनाई। जो पात्र की पाई पाए इसकी खालक जाई जाए। इतों तक भी ये जिहड़ी है, देखो सानू रब ने घड़िया, साडे शरीर की घाड़त रब ने की कि जिहड़ी मूर्ति नूं असीं कर रहे हैं उहदी घाड़त किसी बंदे कारीगर ने की। एक बंदे की घाड़त दे अगे रब की घड़ी हुई मूर्ति मत्था टेके नमस्कार करे, ये गल ते अपने आप ही गलत होगी। ये तुहानूं थां-थां ते मिलेगा, पर एक भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी चों तुहानूं पंक्ति नहीं मिलेगी जिहड़ी हिंदू वीर नूं ये आखदी होवे तूं वेद ना पढ़, तूं शास्त्र ना पढ़, तूं सिमरतियां ना पढ़, तूं गीता ना पढ़, तूं पुराण ना पढ़, तूं रामायण ना पढ़, एक भी पंक्ति नहीं आती। ये सोच विपर ने दी है, उन्हें कहा जितना लोग सियाणे हो जाएंगे ज्ञान पढ़ के मैनू रब किवें मनणगे। तुहानूं ज्ञान नालों तोड़ के मूर्ति नाल जोड़ता ही जुड़ेगा। तुहाडी सुने कि ना सुने, पर तुहानूं नहीं कुछ पल्ले पैण लगा, जिंदगी भर आउंदे हो। गुरमत तुहानूं सीधे रस्ते पाउंदी है। ज्ञान पढ़ो, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। गुरु धार्मिक ग्रंथों का सत्कार करते हैं, पर साडी मर्यादा सानू आग्या दिंदी है। किसी भी धर्म का ग्रंथ तुसीं पढ़ सकते हो, विचार सकते हो, कोई समझ सीख सकते हो, कोई गुनाह नहीं। मन मत रखना। विपर ने की किया? विपर ने बड़ा कुछ वंडिया। सब तो पहला समा वंडिया गया, समा वंडिया गया चार युगां च, चौहां तो गल चली। समा वंडिया, चार युग बने। उस तो बाद मनुख की जिंदगी जीण के वक्रे वक्रे चार तरीके, वो चार आश्रम बने। पहला ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा बानप्रस्थ है, चौथा संन्यास है। इन्हों किया गया चार वर्ण ने, चार आश्रम ने। चलो इतों तक भी कोई गुनाह नहीं, ठीक है। तीसरी वंड जी है वो विपर ने की, खास करके मनु ने की, तो ये की कि मनुख नूं भी चार हिस्सों च वंड दे, चार हिस्सों च वंड दे। जदों मनुख नूं चार हिस्सों में वंडिया तो वो चार वर्ण कहे। सब तो पहला कहता जी मैं ब्राह्मण हाँ। तो कबीर साहब जी ने बड़े आड़े हथी लिया कि ब्राह्मण माड़ा नहीं, पर साढ़े हिसाब नाल ते भी कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहिए तो रहमारी। तो तू ये आखदा भी नहीं जिहड़ा सब तो ऊपर वो ब्राह्मण है। दूसरा ने क्या खतरी है, तीसरा वैश्य है, ते चौथा शूद्र है। चार श्रेणियां च वंडिया। इतों तक कि इन्हां दियां धर्म दियां मर्यादा भी वंडियां। तुहाडे बनाई हुए मंदिर विच
चलो कोई हो सकता कि उत्थे मुसलमान ना जाए, कोई सिख ना जाए, कोई दूजा ना जाए, हिंदू के मंदिर विच हिंदू ही ना जाए, आ किधर दी मर्यादा? भगत नामदेव जी मसीत चो नहीं धक्के खा के आए, मंदिर चो धक्के पे, और भगत नामदेव जी हिंदू ने। धक्के मारने का कारण तेरी जात नीवी, तू नीवी जाता है इसलिए इत्थे नहीं आ सकता। पर सानू इस विषय ते बहुता फखर ਜਾਂ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ कोई वाली गल नहीं है कि उन्होंने धर्म च है। अज साडे धर्म च भी बहुता कुछ आ जाए। असी भी गुरुद्वारे जातां दे आधार ते रविदासियां दा, ये गुरुद्वारा भाबियां दा, ये जट्टां दा, ये रामगढ़ियां दा है, असी भी बनाए, असी भी जातां पुत्तां दे आधार ते बड़ा कुछ वंडिया। उन्हें ये 4 वरण बनाए। 4 वरण तो बाद साल दे विच 4 त्योहार उन्हें वंडे। एक त्यौहार विसाखी का, एक दशहरे का, एक दिवाली का, एक होली का। उन्हें त्यौहार भी वंड दिते। त्यौहार किस तरह वंडे? विपर ने वेख्या कि सब तो ज़्यादा इनकम जी विसाखी की है। लोगों के विआह शादियाँ विसाखी ते, विसाखी के पुरबां ते तीर्थां ते जाना, उत्थे अपना काम चंगा चलेगा। उन्हें कहा जी विसाखी है विपर दी, विसाखी मेरी। दूसरा दशहरा, दशहरा कहता त्यौहार है, क्या दशहरा खत्रियों का है, दशहरा खत्रियों का हो गया। दिवाली, दिवाली वैश्य की। ये जी होली है ये शूद्र के हिस्से आई, होली शूद्र का त्यौहार। लोग कूड़ा करकट अपने घरों तो बाहर कर देंगे ने। शूद्र अखौती नीवी जात, उन्होंने सिर च पाउंदा, उहदे नाल खेडदा, कट्ठा कर मुड़ के अगला साड़ दिंदा है। ये शूद्र का त्यौहार है। ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਤਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚ ਦਾ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਡਤ ਦਾ। ये विद्या पढ़ेगा, पढ़ाएगा, बाणी की कथा करेगा, सुनाएगा, कीर्तन करेगा, सुनेगा। तेन बाहरों कितों जाने की जरूरत नहीं। किसी एक पंडित को जाए कि तू मैनू पढ़ा के नहीं। जो सिख बाणी पढ़ेगा, विद्या पढ़ेगा, मेरा सिख पंडित है। ये गुण है, ये वरण नहीं। दूसरा, जो ये वरण है तो विसाखी तेरी, जो ये गुण है तो विसाखी साडी सांझी। गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने सिख जगत का सब तो पहला जोड़ मेला विसाखी का शुरू किया गोविंदवाल साहिब की धरती। अमृतसर जिले के विच डल्ला पिंड के निवासी परमहंस सुपारो जुलका उन्हों की बेनती थी, जे ते पंडित वरण है फिर विसाखी तेरी, इकला तू है तो तू मनाएगा। पर मैं नहीं मानता सा कहते कि पंडित वरण है, मैं मानता पंडित गुण है। और ये हर एक सिख को होवे, जो हर एक सिख के कोल ये विद्या का गुण है, हर एक सिख पंडित है, फिर विसाखी तेरी किवें होगी? गुरु अमरदास पातशाह जी ने सानू विसाखी का जोड़ मेला दिता। 2 चीज़ां सानू गोइंदवाल तो मिलियां ने। सिख जगत का सब तो पहला तीर्थ बौली साहिब, सिख जगत का सब तो पहला जोड़ मेला विसाखी। दूसरा त्यौहार है दिवाली का। दिवाली वैश्य की है। सतगुरु ने कहा वैश्य की क्यों है? उन्हें कहा जी वैश्य वरण है। सतगुरु ने कहा वैश्य वरण नहीं, वैश्य गुण है। मेरा सिख वैश्य वरण करके नहीं, गुण करके। कदों? सवेरे तुसीं गुरुद्वारा साहिब आउंदे हो, अपना पाठ पूजा करते हो, नितनेम करते हो, बाणी पढ़ते, कथा कीर्तन करते हो, सुनते हो। 10-11 बजते हैं, तुसीं जाके दुकान पर बैठ जाते हो, सारा दिन हट्टी करते हो, बड़े जो व्यापार करते हो, पैसे कमाते हो। ये गुण है, उदों तुसीं वैश्य हो। जो मेरा सिख ये गुण धारण करता है, मेरा सिख वैश्य है, तो फिर दिवाली तेरी किवें रह गई? बाबा बुढ़ा जी ने ये दात साड़ी झोली च पाती। अमृतसर साहिब असीं दिवाली मनाउने, तेरी कन्ने दी किवें? तीसरा त्यौहार उन्हें कहा जी दशहरा। दशहरा खत्तरी का। खत्तरी कौन है? कह जी वरण है खत्तरी। पातशाह कहते खत्तरी वरण नहीं, खत्तरी गुण है। तो खत्तरी का गुण की है?
शस्त्र रखने, अपनी रख्या करनी, दूजे की रख्या करनी, लोड़ पैण ते मैदानी जंग में उतरना। सतगुरु कहते आह गुण मैं अपने सिख दे विच भरे आ, मेरे सिख दे विच आह गुण। मेरा सिख पंडित भी है, विद्वान भी है, मेरा सिख कीर्ति भी है, वह गुण है, वैश्य वाला गुण है, वर्ण नहीं। मेरे सिख के कोल किरपान भी है, जिन्हें कीर्तन करना हो तो वाजा कढ़ लेंदा, ये कीर्तन भी करता है, ये कथा भी करता है, ये विद्या पढ़ता पढ़ाता है। तो जदों इन कोई जरूरत पैंदी विपता की, तो खतरी को थोड़ी भज के जाएगा, मेरे गातरे तो किरपान भी कढ़ लेंदा किया, ये तो गुण है। तो पातशाह कहते जदों खतरी गुण है, फिर दशहरा तेरा किवें हो गया? ये दशहरा भी साडा, हजूर साहब असीं दशहरा मनाते, और उस दशहरे से जिहड़ा गुण है केवल शस्त्रां का पूजन किया जाता है, सत्कार किया जाता है। अस किरपान खंडो खड़ग तुपक तबर अर तीर, सहब सरोही सहती यह हमारे तीर, तीर तू ही सहती तू ही तबर तलवार, नाम तिहारो जो जपे भई सिंध भावकार। ये वर्ण नहीं, ये गुण है। जदों खतरी गुण है तो दशहरा तेरा कले का किवें रह गया? दशहरा सब का साझा, मेरे सिख मनाउणगे दशहरा। ये पैरलल सतगुरु जी ने सारा कुछ चलाया। फिर अगे आगे जी होली, मैं कहा जी होली शूद्रा का त्यौहार है। शूद्र कौन है? अखौती नीवी जात है, ये वर्ण है। सतगुरु ने कहा वर्ण नहीं, ये गुण है। मैं अपने सिखों को गुण देना। गुण की है? संगत गुरुद्वारे आएगी, मेरा सिख हाथ जोड़ के खलो जाता, वीर जी जोड़ा मैनू भी, जोड़ा मैनू भी। मेरा सिख गरीब अमीर नहीं वेखता, अपना बगाना नहीं वेखता, सब दे जोड़े झाड़ता। दरबार साहब वेखो, अमृतसर साहब वेखो, होर स्थानों पर वेखो, बगला साहब, सीसगंज साहब, तुम जोड़ा दो तो पालिश होकर मिलता है। ये गुण है। संगत लंगर छकती है, ये संगत के झूठे भांडे मांजता। संगत ने एकत्र होकर कथा कीर्तन किया, संगत घर में चले गई, ये बाद झाड़ू मारदा। ये वर्ण नहीं, ये गुण है। जिन्होंने भाई गुरदास कहते चारे पैर धर्म दे, वो भलिया इतने चार धर्म के पैर सी, ते चारे पैरों से मनुख ने मुकम्मल धर्मी बनना सी। तू चारे पैर तोड़ देते, पंडित इधर, खतरी इधर, विद्या इधर, किरपान इधर, ते किरत इधर, ते खौती नीवी जात। पातशाह जी ने कहा यह खौती नीवी जात नहीं, ये गुण है। दुनिया के लोगों ने जिन्होंने खौती नीवी जात किया, मेरे कलगियां वाले पातशाह जी ने भाई जैते को गल में लैके की आख्या, रंगरेटा गुरु का बेटा। और मैं यदि व्याख्या जो सुनी ना, गुरु का बेटा, यदा मतलब ये बनता है कि तू गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का बेटा है, जिन्हें अपने पिता का सीस रुल नहीं दिता, अपना पुत नहीं किया। इन्हों की उम्र 20 साल के नेड़े सी भाई जैता जी की, पर जवानी में महाराज जी की उम्र 9 साल की है, 9.5। तू मेरा बेटा नहीं किया, गुरु का बेटा, तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का बेटा। क्यों? ये वर्ण नहीं, ये गुण है। जदों पंडित होना वर्ण नहीं, एक गुण है, तो विसाखी साडी। जदों खतरी होना वर्ण नहीं, ये गुण है, मैं खतरी हाँ, तो दशहरा साडा। तो जदों वैश्य होना वर्ण नहीं, गुण है, उदों दिवाली साडी। तो जदों शूद्र होना कोई वर्ण नहीं है, गुण है, तो फिर होली किसी की कले की किवें रह गई? सतगुरु ने कहा फिर होली भी साडी, जिहड़ा मर्जी मनाए। तरीका वखरा है कि मनाउणी गुरु के हुक्म। ये नहीं कि होली मनाउंदे नहीं जी, साडे झोली नूं किते था भी, क्यों नहीं था? होली कीनी संत सेव, रंग लगा तलाक देव, इनू किते ना जो फिर साडे चो होली है। होली का मतलब गुरु के शब्द की, कलगियां वाले महाराज जी ने होली कही। कह पिचकारिए पुरजा फिरानी कि हर बेरंगरा खुश रंगों को करदा। रंगा की नहीं, जाफरा, जाफरा कहते केसर नूं। दुनिया का इकलौता फुल है केसर, जिहदे 4 गुण ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुशबू भी है, ਉਹਦੇ 'ਚ रंग भी है, ਉਹਦੇ 'ਚ स्वाद भी है, ਉਹਦੇ 'ਚ ताकत भी है। ये चारे गुण दुनिया 'ਚ किसी होर फुल में नहीं जो केसर चले। स्वाद भी है, रंग भी है, खुशबू भी है, ताकत भी है। सतगुरु जी केसर भर भर के सिखा के ऊपर पाते। उन्हें कहा जी देखो होली तो होली है ना, भावे केसर जी पाओ दूसरी। तो सतगुरु पातशाह महाराज जी ने कहा दोनों रखा।
ਹੋਲੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਦੇਵ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਲੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਹੋਲੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਨ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਹੋਲਾ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦੀ ਮਨਸੂਈ ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਚੇਤ ਵਧੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਮਤ 1757 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਵੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਵਿਪਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵਰਣ ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਰਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਆਖਦਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਨਹਿ ਪੈ ਨਾਨਕ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੀ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਏ ਬਖਾ ਕੋਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਬਣੀਏ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਬਣੀਏ, ਵੈਸ਼ ਵੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। 400 ਸਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਰਮਤਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਵੈਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਜ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਨੂੰ ਚੀਨਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ ਨੂੰ ਚੀਨਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮਨਮਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੌਂਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਏ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ